Good morning, students. How are you? I hope all of you will be safe and sound. So, in the last class, we have discussed the verb and its type. Now, today we are going to discuss the verb. The same topic is there. In the last class, we have discussed the two types of main verb, that is transitive and intransitive. But today we are going to discuss another two type of verb, that is according to subject. Verb according to subject. Verb is of two types. The first one is finite verb and second one is non-finite. There is two form of verb according to subject. First one finite verb and another one non-finite verb. Let's discuss on this topic that what is difference between these two. Finite verb, the verb which changes its form according to subject. And we consider subject in the number. Here I will write in bracket number, person or tense. These three things we have to consider of the subject. Then we use verb. Then it will be said that that verb is finite verb. Now non-finite verb. I will show you the example also, but have the differentiation between these two then after. Just opposite to this definition, the verb which doesn't change its form according to subject. Here also we will write number, subject's number, person or tense. मीन्स फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर ले, वो फाइनाइट वर्ब. और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ सी. Let's see. He likes stories to read. The same sentence we will write by changing the subject. You like
stories to read. They liked stories to read. In these three examples, we have used different subject. In the first one, he is there. In the second one, you, and in the third, they. And after that, we have used verb. In the first one, he likes. Second one, you like. Third one, they liked. Now have a see. Have a look here. He likes, the third person. Then we have used here likes, and it is singular also. Okay, in the second one, you, there is like, because of you is second person and plural. That's why we have used plural verb. Third person, plural number, we have used in the past form. Okay, but another verb is here, to read, to read, to read. In these three, means all of the sentences. That's why these three verbs are non-finite. ये चेंज नहीं हुए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वर्ब चेंज हो गए हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे हम फाइनाइट वर्ब. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव फ्रॉम हियर non-finites, on the topic of non-finites. Non-finites, as we have seen, those verb which doesn't change according to subject. Non-finite are of three categories. Non-finite के तीन टाइप्स होते हैं, तीन कैटेगरी होते हैं. पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जेरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल. ओके, ये तीन टाइप किसके हैं? नॉन फाइनाइट के. तो सबसे पहले हमें समझना है आज इन्फिनिटिव के बारे में. इन्फिनिटिव एक्चुअली हम लोग इसको जानते हैं या पहचानते हैं टू के साथ जो वर्ब होते हैं. एक्चुअली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही टू के साथ हमेशा यूज होता है, और इसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं. Sorry, I have written wrong here. Infinitive. Okay. टू के साथ वर्ब वन जो होते हैं उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं. लेकिन कभी कभी समटाइम्स सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और वो चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम लोग इन्फिनिटिव के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज हो जाता है बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है इसे, या इन्फिनिटिव विदाउट टू. ओके, बेयर इन्फिनिटिव. अब चलते हैं हम इसके यूज़ देखते हैं कैसे कैसे यूज़ होते हैं. उससे पहले हम लोग इसके काइंड देख लेंगे. इन्फिनिटिव के दो काइंड होते हैं. एक कहा जाता है, चलिए बेयर इन्फिनिटिव का पहले हम एग्जाम्पल आपको एक दो बताते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. बेयर इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है आई सॉ
him, go। सब्जेक्ट चेंज करते हैं, he saw me go। सब्जेक्ट चेंज हुआ लेकिन ये वर्ब का फॉर्म वैसे का वैसे ही रहा, इसलिए ये दोनों वर्ब जो है इसको हम लोग कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। ओके, और ये दोनों वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब, तो उसके बारे में तो हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ इन्फिनेटिव के बारे में। और इन्फिनेटिव फर्स्ट 2 + वर्ब 1 आप जानते हैं, पहले हमने एग्जाम्पल दे रखा है इन सेंटेंसेस में, और यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव बताया है, उसका भी एग्जाम्पल हो गया है। अब चलिए हम इसके काइंड्स पे चलते हैं। 2 तरह के होते हैं इन्फिनेटिव्स। पहला होता है इन्फिनेटिव जिसको हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। और दूसरा इन्फिनेटिव होता है जिसको हम लोग जेरेंडियल, GERUN, जेरेंडियल इन्फिनेटिव, ये 2 हो गए। सिंपल इन्फिनेटिव को हम लोग नाउन इन्फिनेटिव भी कहते हैं, नाउन इन्फिनेटिव। ओके, अब इस दोनों में ये फ़र्क है कि सिंपल इन्फिनेटिव 2 + वर्ब 1 होते हैं और वो नाउन का काम करते हैं। 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होते हैं एंड वर्क्स एज नाउन। नाउन का काम करने वाले इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव कहलाएंगे, और जेरेंडियल इन्फिनेटिव नाउन का काम नहीं करते हैं, वो या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे या एडवर्ब का काम करेंगे। ये भी होते हैं 2 + वर्ब 1, लेकिन वर्क या हम कहें फंक्शन उसका जो होगा या तो एडवर्ब और एडजेक्टिव, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। I am to go, the sweet is good to eat, this is the house to let। अब इन तीनों सेंटेंस में हम लोग इन्फिनेटिव पे इंडिकेट करेंगे, टू गो, टू ईट, टू लेट। यहाँ पे टू गो जो है एक नाउन का काम कर रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा वर्ब हुआ, कौन सा नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, सॉरी सिंपल इन्फिनेटिव। इसमें ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये हो गए जेरेंडियल इन्फिनेटिव, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए जेरेंडियल इन्फिनेटिव। ओके, इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल सिंपल के हो गए और जेरेंडियल एडजेक्टिव के भी। ओके, आज के लिए इतना ही। Stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you.